Okay, good afternoon, everyone. Uh, Presentation is visible to all. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, I will start now. Today's topic is meniscus injury. Okay, first we'll start with introduction. What is meniscal injury? Meniscal injuries represent one of the most frequent lesions in sport practicing, and in particular in soccer players and skiers. Pain, functional limitations and swelling are typical symptoms associated with meniscal tears. इसमें लिखा हुआ soccer and skiers में ज्यादा होता है, but it is common in all sports except few collision sports. सारे ही स्पोर्ट्स में होगा, स्पेशली इन फुटबॉल ऑल्सो, बिकॉज the most common injury in football is your ACL injury, and most of the time, almost 80 to 90% cases, if there is an ACL injury, that will be associated with meniscus injury. So always remember there is an unhappy triad. अगर मैंने कभी पहले explain किया हो या ना किया हो, I don't remember. But what is unhappy triad? When there is involvement of the cruciate ligament, any of your cruciate ligament, menisci, or any meniscus involvement, or there will be any collateral ligament involvement. So there is a triad that is involving cruciate ligament, meniscus, and collateral ligament of your knee joint. If these three combining an injury और combinedly एक injury होती है, that is called the unhappy triad of your knee joint. ओके तो कभी भी आप कभी केसेस देखोगे तो जो टिपिकल केसेस होते हैं, लाइक ACL का भी अगर केस देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द योर मेनिस्कस, एंड समटाइम्स इफ यू आर लुकिंग फॉर द मेनिस्कस इंजरी देयर कैन बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर ACL, or there will be involvement of your collateral ligament. Okay, so it is common in all sports, especially in loading activities where your knee is under very load. So in that case there will be chances of injury more. So what is the anatomy and physiology of your knee joint, especially considering the meniscus? When you use one term, that is meniscus, if you are using for the both meniscus, it will be called as menisci. Knee joint is composed of incongruent articular surfaces, therefore it relies on other structures to provide both static and dynamic stability. What is that? That is anterior and posterior cruciate ligaments, collateral ligaments of your knee joint, and the menisci capsule and the muscles that crossing the joint. So the menisci are two wedge shaped in cross section. If you are looking in cross section, that will be seen in the two wedge shaped semilunar fibrocartilage structures, and are attached to the tibia, to the femur, and to the patella. So combining a complex joint, that is the knee joint. The medial meniscus is U-shaped, covering around 60% of the medial compartment, whereas the lateral meniscus is more C, with a short distance between its anterior and posterior horns, covering 80% of the lateral compartment. The meniscal tissue consists mainly of water and type 1 collagen fibers. These fibers run circumferentially from the anterior horn insertional ligament to the posterior horn insertional ligament, with predominance in the outer third. अगर कभी आपने meniscus का पिक्चर देखा, अगर पहले में एनाटॉमी याद होगी आप लोगों को, तो वो U एंड C शेप्ड होता है, मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस, जिसमें कोलेजन फाइबर्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है और इनका जो ब्लड सप्लाई होता है वो बहुत ही लेस होता है. एक जेनिकुलेट आर्टरीज होती हैं जिसकी वजह से इनको वेस्कुलर सप्लाई मिलता है, और उनका वेस्कुलर सप्लाई वैसे भी ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है. इसीलिए जब भी मेनिस्कस इंजरी होती है तो चांसेस ऑफ हीलिंग आर वेरी लेस बिकॉज ऑफ द
less involvement of your vascular supply. The fibers help to absorb the energy by converting axial loading forces across the joint into hoop stresses within the tissue. There are also radial fibers which prevent longitudinal splitting of the circumferential fibers. The structure of these fibers are important clinically when deciding which meniscal tears are stable or which are unstable and warrant resection of repair. कभी केस आता है आपके पास तो आपको ये डिसाइड करना इजी होगा कि ये सर्जिकल केस है और यू कैन treat it by only your rehab process or with your hands-on treatment. So you can decide according to the anatomy and the uh, physiology of your meniscus. So next is the very important blood supply to the menisci is of high relevance, having important implications for the potential healing of a meniscal repair. Supply is from the periphery via the median and lateral geniculate arteries, where a Cadbury study has demonstrated that only the peripheral, that is 10 to 25% of the meniscus, benefits from a blood supply in the mature skeleton. Two distinct zones have been termed according to the blood supply, which one is the red and which will be the red and white region according to the blood supply. The red zone is the vascular zone, जो कि आपकी पेरिफेरी पे होती है, जहां पर आपका वेस्कुलर सप्लाई मेनिस्कस को मिलती है. एंड द वाइट एवेस्कुलर जोन सेंट्रली, जो सेंट्रल पे सप्लाई नहीं आती है, जहां पर हीलिंग निल होती है. अगर मीडियल फाइबर्स और वाइट जोन फाइबर्स इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पर हीलिंग नहीं होगी. They are separated by a red-white region with attributes from each zone. Tears located in the white zone are unlikely to generate a healing response. The knee has 2 degrees of freedom, that is flexion, extension, and rotation. The movement of flexion extension is allowed by the simultaneous rotation and translation of the tibia on femur, together with the translation of the patella on the femur. Menisci shifts forward during the extension movement while they are moving back during flexion movement. During rotation, the menisci move in opposite direction. This is the kind of mechanics during the movement of your knee joint, involving the cruciate ligament also and the collateral ligaments also. Okay. Now, classification of the meniscal tear. जैसा कि आपको पिक्चर दिख रहा है, Yes, ma'am. meniscal tear. Okay. Meniscal tears are often classified according to their orientation. They can be vertical, longitudinal, vertical, radial, horizontal, oblique, or complex. Longitudinal tears are more commonly medially, whereas radial tears are more frequently seen laterally. अब इसमें जो भी रेड जोन में आएगा, that is in the periphery, अगर kind of tear आपका periphery पे है तो उसके चांसेस ऑफ हीलिंग ज्यादा रहेंगे, आपका सर्जिकल पोर्शन कम हो जाएगा. और अगर ये वाइट जोन में दिस काइंड ऑफ टीयर आपके वाइट जोन में आते हैं जहां पर वेस्कुलर सप्लाई नहीं होता है, तो वो टीयर एज इट इज रहता है एंड इट बिकम वर्सन according to the mechanics, according to the movement and according to the load of the joint. कितना लोड पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो वैसा ही रहता है एंड टाइम टू टाइम ये वर्सन होता जाएगा. जैसे कि आप फिफ्थ वन जो देख रहे हो, दैट इज कॉम्प्लेक्स और ऑब्लिक, जो कि इनर साइड में है. इवन ऑब्लिक वाला भी है, वो भी जो लास्ट के 2 हैं, जो नीचे के 2 पोर्शन है जिसमें टाइप ऑफ टीयर दिख रहा है आपको, दैट इज ऑब्लिक और कॉम्प्लेक्स, वो टिपिकल है एंड दिस विल नीड द सर्जिकल रिपेयर. Whereas you are looking the longitudinal, vertical, and
horizontal. In fact, the horizontal will be tough to heal. Okay, according to the, let's apply. Vertical longitudinal tears occur between the circumferential collagen fibers. The biomechanics of the knee is therefore not always disrupted, and these tears may be asymptomatic. Complete vertical tears can sometimes twist within the joint, known as buckle handle tears. These are unstable tears which cause mechanical symptoms or true locking of the joint. Locking of the joint is associated with several mechanisms. It can be your PFPS, it can be your chondromalacia patella, it can be your ACL tear also, it can be a severe degeneration of your ACL, your condyles of femur. It can involve many things as a locking of the joint. How mechanism of injury, how it happens? Most meniscal tear mechanisms in sport are non-contact in nature and occur while cutting, decelerating, or landing from a jump. This is seen mainly in the fast bowlers. अगर आप देखोगे क्रिकेट में देखोगे तो फास्ट बॉलर्स में ज्यादा होगा, एंड अगर आप फुटबॉलर्स में देखोगे तो जो उनका किक वाला पोर्शन होता है जिसमें उन्हें किक करना होता है वो वाले पोर्शन पे ज्यादा होगा ऑपोजिट लेग में, बिकॉज दे आर लोडिंग द जॉइंट मोर. And if they are doing the sudden cut movement, cutting movement means अगर आप forward running कर रहे हो, sprint मार रहे हो speed में, and you have to sudden change your direction either in the left side or in the left right side. So in that condition, in that position, your knee will be in the maximum loading position. और सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ इंजरी इवन योर ACL ऑल्सो, दैट कटिंग पोजिशन. डिसलरेटिंग मीन्स अगर आपको स्प्रिंट है और सडनली यू हैव टू रिड्यूस योर स्पीड, देन देयर विल बी चांसेस ऑफ इंजरी. और लैंडिंग फ्रॉम अ जंप, लैंडिंग ऑब्वियसली बिकॉज एज यू सी द लोकेशन ऑफ द मेनिस्काई, क्या होता है टिबिया और फीमर को अगर आप दोनों हाथों से बनाओगे तो इनके बीच में जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने टिबिया और फीमर को दोनों तरफ से कंप्रेस किया तो सबसे ज्यादा लोड कहाँ पड़ेगा? मेनिस्कस पर पड़ेगा, क्योंकि वो बीच में है. तो अगर लैंडिंग फ्रॉम अ जंप कर रहे हो, तो जब आप जंप कर रहे हो तो आपके अपर बॉडी का भी लोड के नी पे जा रहा है वर्टिकली, एज वेल एज ग्राउंड रिएक्शन फोर्स इज द maximum at that particular time of jumping. So this can lead to your meniscus tear. With increasing age, as I told you earlier, the degeneration, because of degeneration of the meniscus, tears often occur with trivial injuries, means involvement of the other factors or other structures also. अभी तक क्लियर है? कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लो, बिकॉज साइन एंड सिम्टम्स के बाद टेस्ट होंगे एंड देन ट्रीटमेंट. हु इज जॉइनिंग द नाउ? मैम डीएक्सेलरेटिंग में क्या समझे हैं? मतलब डिसेलरेटिंग मींस जब आप अपनी स्पीड को कम कर रहे हो, जैसा मैंने बोला, तो वो डिसेलरेशन फेज होता है. माने आप जिस फ्लो में हो वो फ्लो को आपको रिड्यूस करना है. जैसे सपोज बॉलर है, क्रिकेट का बताऊं, जैसे बॉलर है तो फास्ट बॉलर है, उसने स्टार्ट लिया, ठीक है, वो स्टार्ट लिया, रन अप के बाद उसने बॉल डिलीवर करी, उसके बाद तो वो रुक नहीं जाता ना. देन ही और शी गोज इनटू द फॉलो थ्रू फेज, जिसमें वो आधी पिच तक पहुंचता है अपने आप को, अपनी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए. दैट इज फॉलो थ्रू फेज. अगर बायोमैकेनिक्स ऑफ थ्रोइंग का देखोगे तो उसमें भी अगर किसी ने बॉल उठाया है, पोजीशन बनाई है, बॉल थ्रो कर दी, थ्रो करने के बाद उसका हाथ वहीं तो स्टिक नहीं रह जाता ना, वहीं तो स्टक नहीं हो जाता है. उसके बाद वो अपना पूरा बॉल छोड़ने के बाद उसका हाथ का मूवमेंट कंप्लीट होता है, फिनिश होता है. दैट इज डिसेलरेटिंग. माने फॉलो थ्रू फेज में आप अपना स्पीड को डिसेलरेट कर रहे हो. एक एक्सेलरेट होता है, एक डिसेलरेट होता है. तो एक्सेलरेशन के बाद जब आपको वो स्पीड से स्टॉप करना होगा, अपनी बॉडी को नॉर्मल पोजीशन पे लाना होगा, दैट इज डिसेलरेटिंग.
मैम तो उस टाइम मतलब मेनिस्कस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। लोड पड़ता है, हाँ। ओके मैम। ठीक है। ऐसे भी मैं ये सब चीजें अगर बताऊं ना, तो अगर जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना ये चीजें, तो मेनिस्कस इन्वॉल्वमेंट जो मैंने अभी तक देखा है, आ, सिर्फ मेनिस्कस इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर होता है, और अगर होता भी है ना तो वो नहीं पता चलता है। माने ग्रेड 1 ग्रेड 2 बहुत रेयर होता है, जो उस टाइम में सिम्टम्स इतने वर्स होंगे। सिम्टम्स तब वर्स होते हैं अगर सिर्फ मेनिस्कस इन्वॉल्वमेंट है तो वो थर्ड ग्रेड में आपको शो होगा। क्योंकि हाल में ही मैंने अभी 1 साल हो गया, मैंने एक पेशेंट देखा था, मीन्स प्लेयर ही थी, वो फास्ट बॉलर थी। तो वो बोल रही थी मुझे नी पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, बट ठीक है, आई कैन मैनेज, मतलब इतना भी नहीं हो रहा है कि मैं अपना गेम नहीं खेल पाऊं या मैं कोई प्रैक्टिस सेशन मिस करूं। ठीक, आई सेड ओके। मैं मैनेज कर रही थी टेपिंग से, मसल रिलीज से एंड स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम से, ओके। वो सीजन वो खेली, 1 साल उसका पूरा निकल गया। आफ्टर दैट उसने भी फिर वो सब सीजन खत्म होने के बाद घर चले जाते हैं, फिर उसने ऐसे ही वो एमआरआई करा लिया। तो उसमें उसका सिर्फ मेनिस्कस इन्वॉल्वमेंट था, वो भी ग्रेड 3, इन विच उसमें सीक्वेस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। माने मेनिस्कस के पार्टिकल टीयर होने के बाद उस जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे विद इन द नी जॉइंट, विद इन द नी सरफेस इनसाइड द नी जॉइंट। तब जाके उसकी कंडीशन इतनी वर्स हुई थी कि वो उसका रनिंग नहीं था उस टाइम में। आई सेड ओके, मैंने बोला ठीक है, मैं सर्जरी के लिए रिकमेंड करूंगी, बिकॉज आप फास्ट बॉलर हो। इनफैक्ट अगर अभी मैं रिहैब से ठीक भी कर दूंगी विद इन, उसको 8 से 10 हफ्ते लगते हैं उसको ठीक होने में, बट देयर कैन बी चांसेस ऑफ री इंजरी, बिकॉज वो फास्ट बॉलर है। एंड फास्ट बॉलर में जैसे मैंने इसमें ये 3 पॉइंट बोले हैं जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इंक्लूड करता है, दैट इज योर कटिंग, डिसलरेटिंग और लैंडिंग फ्रॉम द जंप। ये क्रिकेट के फील्ड में ये तीनों जो स्किल है, जो तीनों एक्शंस हैं, वो हाई इंटेंसिटी में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फास्ट बॉलर है, शी हैज टू बॉल वेयर द लैंडिंग फ्रॉम अ जंप इज वेरी कॉमन फॉर द इंजरी, बिकॉज ऑलरेडी उसका ग्रेड 3 इंजरी है मेनिस्कस की, और वो जब लैंड कर रही है और उसका लैंडिंग फुट है। अभी ये सब टर्मिनोलॉजी आप पढ़ोगे आगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम मैकेनिज्म ऑफ इंजरी को इतना, या अभी जब अगर आप स्पोर्ट्स से मास्टर्स करते हो तो उसमें इन गेम के बारे में, डिफरेंट गेम्स के बारे में, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जितने भी टाइप्स ऑफ गेम है, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, इन सब की आपको टर्मिनोलॉजी, इन सब के रूल्स, इन सब के मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एंड बायोमैकेनिक्स, ये सब आपको मेथोडोलॉजी, मतलब आपको गेम के बारे में मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए और हर एक एक्शन पता होना चाहिए। क्यों? अगर आप एक्शन नहीं जज कर पाओगे तो आप अपनी डायग्नोसिस को उतना एक्यूरेट नहीं बना पाओगे। इसीलिए ये सारे मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्यों मैं आइडेंटिफाई कर पाती हूँ कि इसके ये एक्शन में कितना परसेंट उस पर्टिकुलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो वीक है, अगर वो स्ट्रेंथन है, अगर वो हाफ इंजर्ड, so that you can make your diagnosis more clear, so that you can uh, give your perfect treatment with the less time, because sports में आपके पास टाइम नहीं होता है, and you cannot fully explain, like कॉपी बुक नहीं चलेगा कि हाँ बुक में लिखा है 8 हफ्ते का रेस्ट है, मतलब वो टोटल 8 हफ्ता रेस्ट ही करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एकेडमी में हो, यू हैव टू इन्वॉल्व विद दिस, विद दैट पर्टिकुलर ऑफ प्लेयर एथलीट, विद हिज और हर इंजरी, और बाकी के भी लोगों को आपको देखना है। सो इट इज वेरी टफ टू मेंटेन दिस थिंग्स एक्यूरेट, बिकॉज अगर आपने उसको एक बार फिट डिक्लेयर कर दिया है और पहले ही मैच में उसको पेन हो गया है, तो सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा कि आपने इतने दिनों से क्या किया, और अगर फिट नहीं था तो आपने उसे फिट डिक्लेयर क्यों किया। और जब तक आप फिट डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक द प्रेशर विल बी ऑन यू कि ये कब फिट होगी या होगा। मतलब दीज आर दी थिंग्स कि आपको चीजें कंसीडर करनी होंगी। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आपका जो प्रोग्नोसिस है वो इफेक्ट होगी। एंड आपके पास स्पोर्ट्स में बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि जैसे जैसे मैच का दिन पास आता है आपको हर प्लेयर को फिट रखना होगा। अंडरस्टूड? यस मैम, यस मैम। अभी अभी समझ में आ गया? यस मैम, बिल्कुल अच्छे से। ओके, नाउ साइंस एंड सिम्टम्स, व्हाट वुड बी द साइंस एंड सिम्टम्स?
First one is your mechanical symptoms of popping, catching, locking, or buckling, along with the joint line pain, are suggestive of meniscal tear but are somewhat non-specific. सी, जो मैं अभी बता रही थी कि इनिशियली आपको उतना नहीं समझ में आएगा बिकॉज इट विल बी लुक लाइक दी सम नॉन स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेन. आप उसका प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जॉइंट भी असेस कर रहे हो, बट देयर इज नो पेन, देयर इज नो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ. इवन एमएमटी आप चेक कर रहे हो, दैट इज इन दी 4 और 5. क्योंकि एक चीज याद रखना, जो एथलीट्स होते हैं ना, उनके मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो इन केसेस में जो मैंने भी देखा है कि अगर आप उसका नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का एमएमटी चेक कर रहे हो, दैट विल बी इन दी 4+5. आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाओ, वो रेस कर लेगा. नहीं मैम, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. सो यू थिंक कि हाँ, इसका क्वाड्रिसेप्स भी ठीक है, इसका हैमस्ट्रिंग का भी ठीक है, इसका इलियोसवास भी ठीक है, फिर ये पेन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि दे यूज टू ट्रेन देयर सेल्फ रेगुलरली, तो उनका एमएमटी उतना लॉस नहीं होता है, वॉट एवर आई हैव सीन सो फार. तो अभी मैं क्या करती हूँ, अब मैं एमएमटी पे उतना फोकस नहीं करती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो एथलीट है और अच्छा एथलीट है. अगर स्ट्रॉन्ग एथलीट है तो उसका एमएमटी कभी भी लेस नहीं आएगा. सो गो विद द स्पेशल टेस्ट, ऑलवेज गो विद द स्पेशल टेस्ट in the primary location. Okay. The most meniscal tears lead to a mild synovitis with swelling for several days after injury, which may be recurrent and activity related. ये थोड़े दिन पेन ये रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, और when you are giving the rice treatment, स्वेलिंग भी चला जाएगा, उसका पेन ठीक हो जाएगा. बिकॉज आइसिंग इफेक्ट्स लाइक द, क्या बोलूं मैं, बहुत अच्छी तरह से इफेक्ट करती है वो. एंड अगर आप एक्यूट ट्रीटमेंट देख रहे हैं, अगर एक्यूटली आप अगर चेक कर रहे हैं उसको और आपने राइस थेरेपी दिया, शी और ही विल बी फाइन विद इन 2 to 3 days. तो उसका इफेक्ट लाइक अ बून इन द एक्यूट केस. और ये जो स्वेलिंग रहेगी, दैट विल बी एक्टिविटी रिलेटेड. समटाइम्स यू सी कि कोई स्वेलिंग नहीं है, इनफैक्ट वॉकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो लिम्पिंग इज देयर, नो पेन इज देयर, and when he or she is involving with the match, there will be high intensity game for the 7 to 8 hours, or the depending on the type of the game कि कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो 2 hours और 3 hours. तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और स्वेलिंग का क्या कंडीशन है. ठीक है. Then a limp is common and the patient with an acute tear may not be able to bear weight. ओके. लिंपिंग बहुत कॉमन होगा. एथलीट आपको नहीं बताएगा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट व्हेन शी और ही इज वॉकिंग, यू कैन ऑब्जर्व हर वॉकिंग एंड यू कैन आस्क और असेस योर एथलीट अकॉर्डिंग टू दैट. द प्रेजेंस ऑफ asymmetry in thigh muscle mass and effusion are also suggestive. effusion भी आ जाएगा क्योंकि साइनोवाइटिस हो रही है, तो फ्यूजन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद एसिमेट्री हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर उसको नी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, शी और ही इज फीलिंग द पॉपिंग साउंड लाइक, और लॉकिंग समटाइम्स एक पर्टिकुलर मूवमेंट में लग रहा है नहीं लॉक हो रहा है, तो व्हाट ही और शी विल डू, वो अपना पूरा वेट उस पे ना डाल के ऑपोजिट लेग पे डालेगी. तो देयर विल बी एसिमेट्री, वो उतना नहीं लोड कर पाएगी, एंड दैट एसिमेट्री विल लीड टू फर्दर इंजरी. A displaced meniscal tear is often associated with impaired active and passive range of motion, termed the locked knee. जो मैंने अभी बताया था डिस्प्लेस्ड मेनिस्कल टीयर, कि अगर वो 3rd ग्रेड में, वो अगर आप टीयर चेक करोगे एंड कंटिन्यूअसली एक्टिविटी उसका हो रहा है, तो दैट विल टर्न इनटू द लॉक्ड नी. Joint line tendon is common as well as pain at the terminal degrees of flexion and extension depending on tear location. टीयर लोकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको रेंज ऑफ मोशन से ही समझ में आ जाएगा उसका इतना डिग्री इन्वॉल्वमेंट है, या उसका रेंज ऑफ मूवमेंट पे ही आपको पता चल जाएगा कि कितना उसका टीयर है और क्या लोकेशन पे उसका टीयर हो सकता है, और टाइप ऑफ टीयर कैसे है, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा. नाउ डायग्नोसिस. एक्सरेज टू फाइंड आउट एनी बोनी एनोमली. MRI to identify the extent of injury.
ऑब्वियसली ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, किस टाइप की कितना इंजरी है उसको, उस पर डिपेंड करेगा। एमआरआई में ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेशल टेस्ट से आपको बस समझ में आएगा कि देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो इसमें ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और कोई आई मीन कितना डिग्री है वो आपको पता चलेगा एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ओके, द मैकमुरेस टेस्ट इज परफॉर्म्ड विद द पेशेंट सुपाइन विद द पेशेंट हिप। आई थिंक मैं बता चुकी हूँ सारा, मैंने इसका स्टीयर के लिए भी बताया था, मैकमुरेस टेस्ट एंड एप्लीज टेस्ट, अगर याद होगा आपको। सुपाइन पोजीशन में रखते हैं मैकमुरेस टेस्ट में, उसके बाद हिप और नी 90 डिग्री फ्लेक्स करते हैं और उसके बाद प्रेशर करते हैं। वी आर चेकिंग द मीडियल मेनिस्कस, यू हैव टू put your hand on the lateral side of your knee and then externally internal rotation. Okay, for medial meniscus tearing, the examiner extends the knee with the foot externally rotated. Lateral meniscus tear is assessed by the internal foot rotation. Opposite movement के साथ हम meniscus test करेंगे। Please test क्या था भाई, prone position में लटा के ऊपर से प्रेशर देना है एंकल पे, एंड देन first giving the pressure, vertical pressure over the foot with internal or external rotation of your knee joint. Which side is painful will indicate the involvement of the meniscus. समझ में आ गया, कुछ याद आया? टेस्ट बताए थे मैंने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now treatment and rehabilitation. Okay, first one is weight bearing should be limited after meniscal repair and progress slowly over 8 weeks to allow for biological healing. अगर रिपेयरिंग हुई है तो उसके हिसाब से 8 to over 8 weeks का रेस्ट रहेगा for the healing. If the repair is in the area of sufficient vascularity and the fixation is stable, weight bearing is often allowed in fixed extension, that is in the brace. This position protects the repair and allows for controlled axial loading while limiting shear forces and may impede healing. इसलिए करते हैं, वैसे तो अभी पोस्ट ऑपरेटिव केस अगर देखें तो हम वेरी नेक्स्ट डे से ही आप अपना रिहैब शुरू कर सकते हैं, वेट बेयरिंग नहीं कराना है। यू कैन include your isometrics and all other interventions जिसमें आपका वेट बेयरिंग नहीं होगा। Initially you can start. Now weight bearing is at the discretion of the surgeon but often is immediate in full extension or begin within 2 weeks progressing to full by 4-week time period. इसमें तो 4-week time period लिखा है, but you can start according to the condition of the patient. In the first 4 weeks following the repair, weight bearing activities in angles greater than 45 degree of knee flexion are avoided to allow for healing of the repair, while loaded knee flexion beyond 90 degree is limited for 8 weeks. सिर्फ टाइम पीरियड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हीलिंग में ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसकी वेस्कुलैरिटी वहां पर नहीं होती है, इसलिए डिपेंड कर रहा है। और अगर पेशेंट का हीलिंग प्रोसेस अच्छा है, यू कैन सी द रिजल्ट इन द पेशेंट इटसेल्फ, सो यू कैन रिड्यूस इट बाय, जैसे कि इसमें लोडेड नी में लिखा है फ्लेक्शन बियॉन्ड 90 डिग्रीज लिमिटेड फॉर 8 वीक्स, यू कैन डू इट बाय 6 वीक्स, और अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट यू कैन change your rest period. The post-operative rehabilitation focus on quadriceps strengthening is performed in the open kinetic chain position to avoid loading the meniscus and stressing the fixation or aggravating the tear. ये तो आप स्टार्टिंग से फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर सकते हैं। In case of complex meniscal repair, weight bearing restrictions can extend to 6 to 8 weeks due to vascularization and healing. Obviously, चेक कर लो, आप सर्जन से बात कर लो, एंड उसको किस टाइप का सर्जरी हुआ है, कौन सा लोकेशन में हुआ है, क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट है, उसके हिसाब से आप अपना रिहैब बना सकते हो। सो दिस इज अगेन सैंपल रिहैब प्लान
According to that, you can make your rehab plan. Phase 1 is the protective phase, which lasts from week 1 to 4. What will be your goals? Your goals are diminish inflammation and swelling, restore range of motion, that is in full extension, knee flexion to 90-degree, hip and ankle range of motion. Reestablish quadriceps muscle activity where SLR without quads lag. Full scar mobility, full patellar mobility. Scar mobility भी बहुत important है because अगर इंसिजन लगे हुए हैं तो उसके हिसाब से वहां पर सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन आपको देना है so that वहां के जो सॉफ्ट टिश्यूज आर इन्वॉल्विंग द मसल्स वो फाइब्रोस्ड ना हो जाए. ओके, नाउ प्रिकॉशंस. वेट बेयरिंग स्टेटस. वेट बेयरिंग एक्टिविटी विथ क्रचेस एंड ब्रेस लॉक्ड एट 0 डिग्री, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि नी एक्सटेंशन में ही करना है उसको पहले फेज में, जो कि पहले 4 हफ्ते की बात हो रही है. रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्शंस. पैसिव रेंज ऑफ मोशन should be in 0 to 90 degree. Recommended restrictions: avoid pivoting and varus valgus stress, no flexion beyond 90 degree. कोई भी रोटेशन उस टाइम में भी नहीं देना है. सिंपली एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट पे वर्क करना है, इंक्लूडिंग योर आइसोमेट्रिक्स ऑल्सो. सो हमें ये चीजों को ध्यान में रखना है कि उसका वेट बेयरिंग तो वैसे भी नहीं होगा जो कि पहले लिखा हुआ है. वो जब तक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाएगा या एंड अप पोजिशन में नहीं आएगा तब तक आपको वैसे ही करना है वेट बेयरिंग का. नाउ ट्रीटमेंट. ice compression and elevation, again the rice therapy, electrical muscle stimulation, and weight bearing activity with crutches and brace locked at 0 degree. Again, motion is limited for the first 7 to 20 days depending on the development of scar tissue around the repair site. Gradual increase in flexion range of motion is based on assessment of the pain and site of repair, जो मैं भी बोल रही थी, आपको एक्सप्लेन कर रही थी. Then patellar mobilization and scar tissue mobilization, that is soft tissue manipulation. Then proprioception training with brace lock. हाँ मैम, गोल्स में सेकेंड लाइन में लास्ट में WNL लिखा हुआ है. वेट बेयरिंग नील. ओके मैम. ओके, okay, patellar mobilization, scar tissue mobilization. Then proprioception training with a brace locked at 0 degree. Then exercises are again quads isometrics, hamstring isometrics. If posterior horn repair, no hamstring exercises until 6 weeks. Okay, क्योंकि वहां पर जब तक हीलिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी और वहां पर इंसर्शन है हैमस्ट्रिंग में बैक साइड में, तो आपको उसका आइसोमेट्रिक्स नहीं करानी है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द रिपेयरिंग. ओके, एंकल पंप्स, दैट इज एंकल सिंपल एंकल मोबिलिटी, anterior posterior flexion and extension, that is plantar and dorsiflexion pumps, and quad sets, heel slides, hip abduction, hip adduction, that is the proximal and distal joint free activities. Then your phase 2, that is intermediate phase, that lasts from week 4 to 6. What would be your goals? Diminish inflammation and swelling, restore full active range of motion, reestablish quads muscle activity. Criteria to progress to the next phase, that is the range of motion आपका 0 to 90 degree होना चाहिए. No change in pain or effusion. Quad control माने आपकी MMT जो आप आइसोमेट्रिक से करा रहे हो, यू कैन चेक इट बाय, तो आपकी MMT होनी चाहिए, वो मिनिमम आपका 4 होना चाहिए आउट ऑफ 5. नेट प्रिकॉशन, आपके वेट बेयरिंग स्टेटस कैसा होना चाहिए? वेट बेयरिंग विथ क्रचेस एंड ब्रेस लॉक्ड एट 0 degree. Range of motion restrictions, passive range of motion 0 to 90 degree. Recommended restrictions are avoid pivoting and varus and valgus stress, no flexion beyond 90 degree. Then again, what would be your main treatment? That is immobilizer. Again, अभी हमें कोई भी वेट बेयरिंग एक्टिविटी नहीं स्टार्ट करना, कोई भी मोबिलाइजेशन नहीं देना है. Then PRE for hip, knee and ankle.
and progress weight bearing flexion 45 to 90 degree. Okay, continue proprioceptive training, and exercises are heel raises, that is for quad, calf muscles. Mini squats. Mini squats are especially for the glutes muscle, that is less than 90 degree of knee flexion, where your glute will be active. स्टेशनरी बाइकिंग, नो रेजिस्टेंस, जो फ्री बाइकिंग आती है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो वाली आप साइकिलिंग को रिकमेंड कर सकते हैं. देन फेज 3 that lasts from week 6 to week 12. What would be your goals? Restore full active range of motion, regain full muscle strength, prepare patients for advanced exercises. Criteria to progress to next phase, that is full pain-free range of motion, no pain or tenderness, SLR without lag, gait without device, brace unlocked. Then what is precaution? Weight bearing status, forward weight bearing, DC crutches and brace. Range of motion restrictions, weight bearing flexion 0 to 90 degree. Recommended restrictions are avoid patellofemoral overload, avoid squatting, avoid pivoting और twisting on knee. सिंपल वेट बियरिंग होगी जिसमें आपको जैसे वेट बियरिंग कराना है एंड वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग ही कराना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है. मिनी स्क्वाट आएगा, जब आप मिनी स्क्वाट करते हो देन आपका ग्लूट्स पे वर्क आता है रादर देन क्वाड्रिसेप्स. तो ये सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है, अभी आपको ट्विस्टिंग लोडिंग इस टाइप का कोई भी मूवमेंट नहीं करना है. यू आर जस्ट गोइंग टू teach your patient how to walk, how to bear the weight. Then treatment, begin loaded flexion beyond 90 degree at 8 weeks. Then exercises are progress PREs, stationary bike, quadriceps sets, heel slides, SLR, SAQ, heel raises. SAQ, I'll tell you what is that. Heel raises, sideline hip abduction, standing hamstring curls, wall slides with knee flexion that is less than 90 degree, squat to chair, that is sit to stand, seated leg press, जो आपका quadriceps और hamstring के लिए आता है seated leg press, वो step up and down, flexibility exercises that is for hamstring, quadriceps and calf muscles, that is the stretching. Okay, now we will come to the phase 4 जहां पर आपका ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी. सो आप उसके बाद आपको उसकी फुल मस्कुलर स्ट्रेंथ पे वर्क करना है. तो हम इसकी बात करेंगे. इसमें आपका गोल्स क्या होंगे? दैट इज रीगेन फुल स्ट्रेंथ, फुल मसल स्ट्रेंथ, एंड देन इंक्रीज पावर एंड एंड्योरेंस, प्रिपेयर फॉर रिटर्न to unrestricted activities. Just a second, I'll be back in a few minutes. Sorry for the disruption, I'll be back. Okay, I'm sorry. कहाँ थे हम? Okay, goals. Prepare for return to unrestricted activities, then work on cardiovascular conditioning, then sports specific training. Then precautions,
weight bearing status, that is full weight bearing. Range of motion restrictions, there will be no restrictions as you are going to take your patients for the full activities or RTP. Then recommended restrictions are avoid patellofemoral overload, avoid squatting, avoid pivoting or twisting on knee. Then what is the treatment? The continue all exercises, increase plyometrics and full program if available, initiate running program and sports specific drills, then emphasize plyometrics, jumping and cutting. Then phase 4 is the from week 16 onwards, you can include all the things, all the skill activities, all the sports activities, and then you can take the RTP test and you can give him the green card. Then safely, what are your goals? Safely recondition the injured area for the demands of sports activity. Criteria for discharge from skilled therapy: non-antalgic gait pattern, pain-free full range of motion, no palpable edema, lower extremity strength at least 4 out of 5, then independent HEP, that is home exercise program, then age, appropriate balance and proprioception abilities, it is very important. Then precautions, weight bearing, that is full weight bearing, range of motion restrictions, there will be no restrictions, and recommended restriction: avoid patellofemoral overload, avoid squatting, avoid pivoting or twisting on knee according to the patient or athlete. Then treatment, return to running progression, left running on soft level surface, need full range of motion, good strength and no swelling to run safely. Start with running 10 minutes, 3 times per week for first 2 weeks. If pain-free with running, can increase running time by 1 minute per session for maximum 30 minutes. And according to that, according to the athlete response and according to the pain, you can increase by per session. Speed and agility running program for return to sport is a straight ahead running phase, direction change running phase, that will include your cutting and a change of directions, and the unrestricted directions change, वो आप किसी भी कंडीशन में आपका चेंज कर सकता है अपना प्रोग्राम, मतलब रनिंग, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. एज उसको कुछ भी डिस्कम्फर्ट है, यू कैन स्टॉप द एक्टिविटी इमीडिएटली, जस्ट असेस हिम और हर whatever the problem is occurring there, then according to that treat that particular area and again go with the running program. So this was all about the meniscus injury. Any doubt so far? मैम ये लास्ट में अनरिस्ट्रिक्टेड रनिंग में नहीं समझ में. कहाँ पर? लास्ट फेज में? लास्ट फेज में वीक 16 वाले में? मैम लास्ट लाइन. लास्ट लाइन अनरिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शंस चेंज. यस मैम, यस मैम. तो अनरिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन चेंज, जैसे पहले लाइन में लिखा, उसके पहले लिखा हुआ ना डायरेक्शन चेंज रनिंग फेज, पहले क्या था? स्ट्रेट अहेड रनिंग फेज. पहले आपको स्ट्रेट कराना है, क्योंकि ये कौन सा है, ये आप आरटीपी भेज रहे हो उसको. आरटीपी मींस रिटर्न टू प्ले भेज रहे हो, और रिटर्न टू प्ले भेजने के पहले पहले आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि हर डायरेक्शन में वो रनिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. पहले आप उसको चेक करोगे रनिंग अहेड फेज, माने उसको सीधा दौड़ना है, उसको कोई भी आपको कटिंग मूवमेंट नहीं देना, कोई भी चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं देना. दूसरा है डायरेक्शन चेंज रनिंग फेज. पहले आप उसको बोलोगे कि नहीं, आपको इतना मीटर, आपने कौन सेट किया, आपको इतना मीटर आपको फॉरवर्ड रनिंग करना है, देन यू हैव टू टर्न राइट, देन you have to turn left, then again you have to run straight. अब कौन क्लास अटेंड कर रहा है? ये कोई टाइम है क्लास अटेंड करने का? हाँ
तो उसको आपने कोन लगाया, कोन लगाने के बाद आपने उसको पहले ही बोल दिया कि यू हैव टू रन इन इतना मीटर, आपको फॉरवर्ड रनिंग है, फिर आप लेफ्ट रनिंग है, फिर राइट रनिंग है, इतने इतने डिस्टेंस पे। वो डायरेक्शन चेंज रनिंग फेज है। उसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन चेंज है, माने कि आप उसको रनिंग के लिए भेज दो और उसको बोलो कि किसी भी डायरेक्शन में आपको मूव करना है, जब भी मैं क्लू दूंगी तभी आपको मूव करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट। उसने रनिंग स्टार्ट करी, मूव राइट, लेफ्ट। वो उसकी रनिंग के साथ ही अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब उसको डायरेक्शन चेंज करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है आपको 10 मीटर के बाद आपके माइंड में सेट है आपको राइट ही रन करना है। ओके इट मैम, कैन बी थैंक एनीवेयर, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम डायगोनल, कहीं भी हो सकता है। यस मैम। मैम इसीलिए वो इसको रखा है स्पीड एंड एजिलिटी रनिंग प्रोग्राम में। एजिलिटी का मतलब ही यही होता है, यू योर रिएक्शन शुड बी क्विक अकॉर्डिंग टू द क्लू। और क्या पूछ रही थी? मैम एसएक्यू में एजिलिटी एंड क्विकनेस दिया हुआ है, स्पीड एजिलिटी एंड क्विकनेस। तो एजिलिटी एंड क्विकनेस में हाँ, ऐसे क्यू इज डिफरेंस। स्पीड। यस मैम। मैम तो एजिलिटी बेसिक एंड क्विकनेस इज लाइक दैट इज रिएक्शन टाइम ऑल्सो, क्योंकि एजिलिटी के अंदर अगर हम बात करेंगे, जो मैंने बोला था पहले कि जब मैं टेस्ट पढ़ा रही थी, तो उसमें आपका क्या था कि हेल्थ रिलेटेड था, परफॉर्मेंस रिलेटेड था, अगर याद होगा तो। हेल्थ रिलेटेड में मैंने सारे फैक्टर्स पढ़ाए थे, और परफॉर्मेंस रिलेटेड में आपके पास ज्यादा नहीं था पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं था। फिर भी मैंने बताया था आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड में क्या क्या चीजें आएंगी। एजिलिटी, एजिलिटी के साथ साथ और क्या क्या आता है उसमें? क्विक रिएक्शन टाइम आता है, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज आती हैं, जितनी भी प्रोप्रियोसेप्शन से रिलेटेड एक्सरसाइजेज आती हैं वो आपकी सारी उधर आएंगी, और वो जब एजिलिटी में ही आएंगी। और जब आप किसी भी एथलीट को आरटीपी दे रहे हो, रिटर्न टू प्ले दे रहे हो, तो वो चेक करने के लिए जितनी भी प्रोप्रियोसेप्शन की एक्सरसाइजेज होंगी वो सारी आपकी उसके अंदर आएंगी। क्विकनेस मीन्स क्या है? एजिलिटी चेंज कर रहा है, एंड क्विकनेस में यू आर गोइंग गिविंग अ क्यू, सॉरी क्लू, एंड वो चेंज कर रहा है, वो आपके क्लू को, आपका कमांड जो है उसको अडॉप्ट कर रहा है, और उतना ही स्पीड में वो चेंज कर रहा है। दैट इज क्विकनेस। हाउ क्विक इज, कभी कभी देखा होगा आपने कि क्यों किसी को अच्छा फील्डर बोलते हैं? पास से बॉल जा रहा है, कोई नहीं पकड़ पाता है, और जो पकड़ लेता है वो आउटस्टैंडिंग होता है। दैट इज क्विकनेस। एजिलिटी, रनिंग कर रहा है, हर कोई बाउंड्री लाइन पे बॉल नहीं रोक पाता है, कुछ ही फील्डर्स रोकते हैं, जिनका जो बहुत ही एजाइल होते हैं, जिनको आप किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी चेंज करने के लिए अपना डायरेक्शन बोलोगे, वो उतनी ही स्पीड से एंड जज करके कि मेरा कितना स्ट्राइड होना चाहिए ताकि मैं उस बॉल पे रीच कर सकूं, या मेरा कितना स्ट्राइड के बाद या कितने स्टेप के बाद मेरा रैकेट जो है वो शटल को हिट कर लेगा मेरे रैकेट से। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप किसी एक टर्म में स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो डिफरेंट, मैं यहाँ पर एक आपको पीटी नहीं स्पोर्ट्स पढ़ा रही हूँ, पर्टिकुलरली किसी एक स्पोर्ट का नहीं पढ़ा रही हूँ। तो डिपेंड ऑन द गेम, डिपेंड ऑन द एक्टिविटी, वो सारी एजिलिटी क्विकनेस उस अलग अलग डिपेंड करती है। क्यों अलग अलग गेम की अलग है? क्यों सबको एक ही प्रोग्राम क्यों नहीं दे देते हैं? टेनिस वाले को भी वही प्रोग्राम दे दो, बैडमिंटन वाले को भी वही प्रोग्राम दे दो, क्रिकेटर्स को भी वही प्रोग्राम दे दो। क्यों सबके लिए अलग अलग स्किल ट्रेनिंग, अलग अलग कोचेस डिसाइड होते हैं? क्रिकेट वाले कोच को भी वहां भेज दो, वो वहां भी तो बता देगा, बेसिक तो वही है। बट डिपेंड्स ऑन द गेम, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, आपका स्पीड, आपका एजिलिटी, आपका क्विक रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दी कमांड कितना चेंज होता है, ये सारी चीजें अलग अलग डिपेंड करती हैं। डेफिनेशन तो एक ही है, बट हाउ यू इम्प्लीमेंट इन डिफरेंट कैटेगरीज इज इम्पोर्टेंट थिंग। तभी मैं बोलती हूँ बार बार कि कॉपी बुक स्टाइल मत रखो कुछ भी। जब जस्ट गो एंड फील द एक्सपीरियंस, तो बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, बट प्रैक्टिकली जब आप अप्लाई करोगे ये चीजें तो आपको खुद समझ में आएगा ये कितना डिफरेंस है इसमें। उसके लिए प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो जब भी आप, कभी भी आप जाओ किसी, अभी आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं वो डायरेक्ट पूछते हैं, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो उनको वो चीजें फील होती हैं कि हाँ ये उस टाइम में था, बट ये कई कई कुछ कुछ चीजें आपकी बुक में नहीं लिखी हुई हैं, बट फिर भी आप अप्लाई करते हो और यू गेट द रिजल्ट्स। सो दिस इज वेरी लाइक इनोवेटिव काइंड ऑफ थिंग्स। और ये जो चीज लिखी हुई है, ऐसा नहीं है ये कहीं
फिक्स हैं. It can change time by time according to the research, according to the articles. रिसर्चेस तो हर साल हर दिन ही होती रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. जो मैंने हो सकता है मैंने डायरेक्शन चेंज रनिंग फेज लिखा है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये ना रहे, सिर्फ स्ट्रेट अहेड रनिंग के फेज आपका अनरिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन चेंज आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. सो इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी, जो मैंने पहले भी बोला है कि जस्ट रिमेंबर द बेसिक थिंग्स एंड go and apply the things you can. Okay? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, any other doubt? मैम एक वर्ड आ रहा था अवॉइड पाइवटिंग, तो इसमें सिंपली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन को अवॉइड करना है वेट बेयरिंग पोजीशन. नहीं, pivoting is the different movement. Pivoting is like रोटेशन समथिंग, रोटेशन काइंड ऑफ रोटेशन है. हाँ, एक सेगमेंट स्टेबल रहेगा, दूसरा सेगमेंट उसके ऊपर रन करके. तो ये तो चाहे टिबिया ओवर द फीमर हो सकती है, फीमर ओवर द टिबिया हो सकती है. ओके मैम. क्योंकि सबसे ज्यादा पिवटिंग मूवमेंट हाँ मैम जैसे फुटबॉल में होता एक है. बार एक्सप्लेन किया था कि एक पैर जमीन से टच करके रह जाता है और एक हाँ. बस आगे चल जाए. हाँ वही वाला है, क्योंकि एसीएल की जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है दैट इज द मेन पिवटिंग इंजरी एसीएल की. तो तभी मैंने बोला ना कि देयर कैन बी अनहैप्पी ट्रायड. बोला मैंने कि अनहैप्पी ट्रायड में क्यों है, क्योंकि सेम फैक्टर्स यहाँ भी इन्वॉल्व है, सेम फैक्टर्स वहां भी इन्वॉल्व है. तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं मेनिस्कस इंजरी के फैक्टर्स पढ़ा रही हूँ तो उसमें एसीएल नहीं आ सकता. देयर कैन बी. तो क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जॉइंट का तो वही रहेगा, नी जॉइंट पे उतने ही मूवमेंट होंगे जितने होते हैं उसमें सारे ही स्ट्रक्चर, क्योंकि आपके जो ये सारे एसीएल लिगामेंट कैप्सूल ये सब आपके स्टैटिक और डायनेमिक स्टेबलाइजर में आते हैं. जहां भी एक पॉइंट वीक होगा, एक भी स्टेबलाइजर वीक हुआ तो फिर कुछ भी आपका जो भी स्ट्रक्चर वीक है, जैसे न्यूट्रिशन वाइज की अगर उसको न्यूट्रिशन वाइज में अगर उसको कोई चीज वीक है या स्ट्रक्चर में ही कमी है तो वो चीज इन्वॉल्व हो सकती है. हो सकता है किसी प्लेयर का एसीएल बहुत स्ट्रांग है एनाटॉमिकली कंपेयर टू मेनिस्कस, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हुआ बट एसीएल टियर नहीं हुआ और मेनिस्कस टियर हो गया. दिस इज पॉसिबल. ओके मैम. ओके, आई विल वाइंड अप द क्लास बिकॉज मेरी नेक्स्ट क्लास है 2 बजे से. सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इट डाउन एंड मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कल ही तो है मेरी क्लास 2 बजे से. ओके मैम. थैंक यू मैम. हाँ, मैं कल आप अपने क्वेरीज लिख के रख लीजिएगा, जो भी क्वेरीज होंगी मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू.